Good morning, everyone. A very, very good morning to one and all. So, today is our day 23, और if you all did yesterday's assignment जो हम लोग ने आपको बुक मैम ने लेखिका ने कहा था, so if you all did it, आपको कैसा लगा? If you all can share your experience, and then we'll start the running. So I don't think so अभी आपके पास कोई sharing या questions है. So let's begin the session with our running today. All of you all please stand up for your running. Yes, so let's begin with the peak state programming. And my request to all of you is to please do this because there's just 7 days left and we all need our energies to be on the peak level क्योंकि जो आगे आगे chapters आ रहे हैं, I mean it's going to take a gratitude to another height, to another level. So I think I'll just begin with the music if all of you are ready. Yes. Okay, thank you. Faster, 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 faster. I'm the winner. I'm the winner. I'm the winner. Please put your left foot in front now. I'm the winner. I'm the winner. I'm the winner. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. So, we'll start this session with our prayer. Please fold your hands, everyone. This beautiful morning, we pray to our divine intelligence to make this an impactful session where our energies may lift each other up. As the day unfolds, transforms into a magical day for us and those around us. Thank you, thank you, thank you. So now we'll begin today's chapter. So Sakshi will first explain it in Hindi and then we'll do it in English. So आज हमारा 23rd day है, and today's chapter is again very Madhushi ji, you can't see me. Yes, Ashwi ko. Oh, yes, Yashasvi will not be able to switch on her camera today because of some network issue. Hopefully, she'll be able to by the time she needs to explain, but right now she won't be able to. So, today is day 23 and आज हमारा chapter है Magical Air, जादुई हवा. So, I would first request someone to nominate his or herself to read this wonderful chapter. Yes, I can. Okay, thank you. And तो आप जैसे देख सकते हैं ये पिक्चर में there's a tree and इसके around there are lights like sparkles. So this light is basically air, the magical air. We are so lucky, so lucky to we are able to breathe. And मतलब हम लोग को ये realize नहीं होता है कि हम लोग कितने gifted है, हम लोग को किस basis पे मतलब without even any हम लोग कुछ कुछ किए नहीं है ऐसा कि हम लोग को ये सब चीज़ मिलना चाहिए फ्री में, जो हम लोग को मिल रहा है एंड हम लोग को वो एहसास नहीं हुआ है कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर अस टू बी थैंकफुल फॉर द एयर वी ब्रीथ. तो आप बोल रहे होंगे कि सिंस द पास्ट 22 डेज एवरी सिंगल डे आनंद आज हम लोग को कराता है प्रार्थना एट द एंड लाइक शुक्राना.
So we are to being thankful for the air we breathe. But before these 22 days, kabhi bhi, at least I don't know, before I got to know about this book, about this chapter, उसके पहले तो मैंने कभी मतलब सपने में भी नहीं सोचा था कि आपको थैंक द एयर, बिकॉज इट वाज लाइक अरे क्या है, सांस तो ले रही है, बिना उसके क्या होगा. सो इट्स जस्ट अबाउट द फैक्ट दैट हम लोग हर चीज को ग्रांटेड लेने की हम लोग की आदत बन गई थी. However, because of this book and because of this wonderful chapter, we will today understand how important it is for us to, pay gratitude to the air we breathe. So let's begin. Next page, please. आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं. 23वां दिन, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं. ये बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकले और एक बिल्कुल बदलते हुए इंसान बनकर लौटे. चमत्कृत सम्मोहित. मैरी एलन चेस, शिक्षाविद 1887 to 1973, शिक्षाविद और लेखिका. तो ये बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकले और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटे. चमत्कृत सम्मोहित. सो सम्मोहित, चमत्कृत मतलब मेस्मराइज. कितने बार बोलते हैं ना हम लोग कि अरे आज की हवा में तो क्या मिठास है, आज तो क्या फीलिंग है हवा में, मतलब मेरा मन ही पूरा खुश हो गया. इट हैपेंस अ लॉट विथ मी एंड स्पेशली ड्यूरिंग दिवाली टाइम. मतलब ये शस्त्री एंड आर्यन बोथ नो कि 10 days, 1 week before Diwali, I become so excited and happy because I just feel that just a few days before Diwali, एक difference होता है air में, एक मिठास होता है, and that मिठास मतलब just excites me always. So I genuinely believe कि खाली दिवाली के वो एक हफ्ता का बात नहीं है. Even when you just go on a walk or just like आप ऐसे ही कभी गाड़ी में भी बैठे हैं, एट टाइम्स आपको भी फील होता होगा कि आपको हवा में ऐसा से ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि मतलब यू आर जस्ट मेस्मराइज. क्या क्या दिन है, क्या हवा है, पूरा मन खुश हो जाता है. मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है, बहुत बार. जब भी मैं फ्रेंड्स लोग के साथ ड्राइव पे गई हूँ या ऐसे ही मैं कोई वॉक पे गई हूँ सुबह या दिन में, तो आप भी अपने लिए सोचने की ट्राई करिए. प्लीज कंटिन्यू. यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यही सोचती कि उसका दिमाग सड़क गया है. इसमें मुझे जरा भी समझदारी नजर नहीं आती. आखिर कोई उस हवा के लिए कृतज्ञ कैसा क्यों हो जिसमें वह सांस लेता है. लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, तो जिन चीजों को मैंने अनदेखा कर देती थी या जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वे मेरे लिए चमत्कार बन गए. मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गई और मैं बड़ी तस्वीर व सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी. जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है. यह संयोगवश नहीं हुआ था. इन शब्दों ने मुझे ज्यादा एक मिनट. तो मतलब लेखिका खुद बोल रही है कि अगर कोई उन्हें बोलता बहुत साल पहले कि आर यू थैंकफुल फॉर द एयर वी ब्रीथ, वो क्या बोली, मेरा दिमाग सरक गया था. मतलब वो बोली थी क्या बोलने की कोशिश कर रहे, मतलब पागल है क्या, कौन एयर के लिए थैंकफुल होता है. अरे हम लोग को मिलना ही चाहिए, दिस इज लाइक अ नेसेसिटी, इसके बिना कोई जी नहीं सकते, इसके लिए क्या बोले, क्या बड़ी बात क्या है. बट उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि कोई संयोगवश चीज नहीं है कि all the planets, all the 5 elements, every single thing, हम इस अर्थ में बॉर्न हुए हैं. हम कोई और प्लैनेट में भी तो बॉर्न हो सकते थे ना, मैं और आप सोचिए. इट्स नॉट कोइंसिडेंस, कोई रीजन से हम लोग को ये मिला है. ऐसे नहीं मिलता है ये सब चीज हर जन को. हम लोग भी कुछ और बन सकते थे, हम लोग भी कोई और प्लैनेट में पैदा हो सकते थे. बट वाई आर वी गिफ्टेड दिस ब्यूटिफुल थिंग, द 5 elements. आप सोचिए क्योंकि देर इज अ रीजन बिहाइंड इट, एंड दैट रीजन जो भी है आपको उसके लिए थैंकफुल होना पड़ेगा, बिकॉज यू आर द लकी वन. आपको जीवन में ये गिफ्ट मिला है, हर जन को ये नहीं मिलता है ये चीज. तो वही वो समझाने की कोशिश करी, देयर इज नो कोइंसिडेंस. तो आप इसको ग्रांटेड मत लीजिए कि हाँ मेरे को तो मिलना ही था, आई एम अ ह्यूमन बीइंग. नो, दैट्स नॉट द पॉइंट हियर. और आप एक चीज सोचिए कि
सब कुछ, अगर हम लोग के प्लैनेट को आप ले ले, द वे दे आर पोजिशन, जैसे वो लोग घूमते हैं, जो एक्सिस पे घूमते हैं, जितना भी आप सब कुछ ले ले, हर चीज तो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है ना, कि 5 एलिमेंट्स हो, प्लैनेट्स हो, हम लोग इस अर्थ में पैदा हुए हो, हम लोग एनिमल नहीं बने हो, हम लोग ह्यूमन बीइंग बने हो, नथिंग इज कोइंसिडेंस, हर चीज का तो बात ही नहीं है। तो लोग को थोड़ी बिलीव होती है अभी भी कोइंसिडेंस, मेरे मुझे नहीं है। तो संयोगवश नहीं है, इसलिए आज से, अगर आप पहले नहीं हुए हैं, तो आज से इस ब्यूटीफुल एयर के लिए, इस नेचर के लिए, पेड़ पौधे जिससे हमें सांस मिलते हैं, उसके लिए प्लीज प्लीज थैंकफुल होइए। आई नो पीपल, जो लोग के लिए ये नेचर, द 5 एलिमेंट्स लाइक अर्थ, वाटर, एयर, ये सब सब फ्रेंड्स है। तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आप लोग ने अगर एक मूवी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी है, अगर आप लोग ने वो देखी है, उसमें ऋषि कपूर होते हैं। तो ऋषि कपूर अपने ऐसी पेड़ पौधों को जब पानी देते हैं, तो वो ना उन लोग से बात करते रहते हैं, हेलो, गुड मॉर्निंग, और तुम कैसे हो, एंड आई रियली लव यू, ऐसे पेड़ को बोलते हैं। तो देयर आर पीपल, वो मूवी में दर्शाया गया, एंड आई नो पीपल हु आर सो फॉन्ड ऑफ द ट्रीज एंड बाकी चीज से लोग बात करते हैं अकेले बैठ के, कोई कोई लोग तो अपने आप हवा से भी बात करते हैं। तो क्यों? बिकॉज दे कंसिडर देम टू बी फ्रेंड्स। तो आप सोचिए, अगर आप उनके अपना फ्रेंड्स बना सकते, तो आपका कर्तव्य है ना उनके तरफ ग्रेटिट्यूड पे करना। तो प्लीज, इफ यू डोंट, आज से स्टार्ट करिए। प्लीज कंटिन्यू। इन इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। यह कोई संयोग नहीं है कि एक रचनात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है और उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ये तो सृष्टि की व्यवस्था है, ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है, और यदि हम आकाशगंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते, तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं। वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं, और उनका महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा सा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। यह यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज संयोग से हो सकती है। यह लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तरतीब से बनाई गई है, रखी गई है, आदर्श ढंग से संतुलित है, और वे सब हमारे लिए है। कैन यू प्लीज चेंज? नो, आप देखिए राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा ना, जब आपको यह एहसास हो जाता है। आप देख पा रहे हैं? नहीं, अभी तो ये है, लास्ट मैंने पढ़ लिया ना। हाँ, ये तो लगता है कि हाँ, आपने लेफ्ट हैंड साइड में था, अब राइट हैंड साइड में भी है पैरेलल। ओके। जब आपको ये एहसास हो जाता है कि ये सारी चीजें संयोग नहीं हो सकती, और पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर के हर छोटे से छोटे तत्व का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है, तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि यह सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। ये जादुई हवा जिससे आप सांस लेते हैं प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। जब आप ये सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए किसी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी, और फिर आप सांस लेते हैं, तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। तो एक हम मिनट एक रुकिएगा ना, एक मिनट। तो इतने सारे समय लेखिका ने हमें दोस्त समझाने की कोशिश किया, एंड अगेन शी इज टेलिंग, शी इज एम्फसाइजिंग, कोई चीज संयोगवश नहीं है, इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस। अगेन प्लीज आप एक बात को समझिए, कि आप अगर अभी भी, द रीजन वो बोलती क्यों है मेरे अनुसार कोइंसिडेंस, ताकि हम लोग को समझ में आए कि वी आर द लकी वंस, एंड ऑटोमेटिकली दिल से ग्रेटिट्यूड निकली। वहीं पे अगर हम लोग थोड़ा भी इस चीज को ग्रांटेड लेने लगेंगे, बोलेंगे अरे ये तो होना ही था, ये तो कोइंसिडेंस है, वहीं पे थोड़ा ग्रेटिट्यूड का लेवल थोड़ा कम होने लग जाता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू मी, माय एक्सपीरियंस। हो सकता है आप सेम चीज एक्सपीरियंस नहीं करती हो। एंड एक और चीज सोचिए, जस्ट इमेजिन अ डे, क्या मतलब अ फ्यू सेकेंड्स विदाउट ब्रीदिंग।
आप सांस नहीं ले पा रहे। पता है बचपन में वी ऑल यूज्ड टू डू दिस इन स्कूल एटलीस्ट, हम लोग क्या करते थे ना कि देखते हैं कौन ज़्यादा देर तक साँस को पकड़ के रख सकते हैं, या हम लोग स्विमिंग पूल में जब डुबकी लगाते हैं कितनी बार लेट्स प्ले अ गेम, कौन ज़्यादा देर तक पानी के अंदर रह पाएगा। ऑब्वियस सा बात है, सब लोग को पता है, मतलब कुछ सेकंड के बाद ही सबका एकदम टाइट-टाइट हो जाते हैं, बाबा रे! कोई रह ही नहीं सकता बिकॉज़ एवरीवन नोज़, माय गुडनेस, ब्रीथिंग के बिना इंसान जी नहीं पाएगा। तो आप सोचिए कि अगर आप कोई चीज़ के कारण जी नहीं पाएँगे, आप उसके लिए अगर ग्रैटिट्यूड नहीं पे कर रहे, तो वी आर डूइंग समथिंग वेरी, वेरी इनकरेक्ट। आपको अगर इस चीज़ के बारे में अभी भी समझ नहीं आती है, तो यू कैन टॉक टू दोज़ पेशेंट्स, दोज़ पीपल विथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स, जो अभी इस पैंडेमिक में जो लोग सफ़र किए हैं, उन लोग से कितना इश्यूज़ हुआ है। आई नो पीपल, लाइक आई हैव फ्रेंड्स, जिन लोग अभी टच वुड रिकवर कर चुके हैं, बट दे टोल्ड मी दैट इट इज़ बहुत दिक्कत होती है इस पूरे पैंडेमिक में, जो जो सफ़र करते हैं ब्रीथिंग के पास। उन लोग को तब एहसास हुआ कि माय गुडनेस, हम लोग कर क्या रहे थे इतने दिन से। तो ऑब्वियसली आपको सबक सिखाने के लिए ये तो नहीं है ना कि आपको कुछ होना पड़ेगा अपने शरीर को। ऑब्वियसली यू वांट टू बी हेल्दी, तो ये तो नहीं हो सकते कि आप बोलेंगे कि जब मेरे को प्रॉब्लम चैलेंज आएगी तभी मैं देखूँगा। अभी हमको पता है एयर है तो क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है, नो। आपको ये बात समझना है कि बिना सबक सीखे ही आज से ही आप एयर के लिए ग्रेटफुल हो। इस ब्यूटीफुल सुंदर मीठी हवा के लिए धन्य हो, ताकि आपको आगे जाके कोई चैलेंज नहीं फेस करना पड़े, क्योंकि एयर को पता है ये तो मुझे इतना प्यार करता है, ये मुझे इतना टाइम देता है, तो व्हाई शुड आई नॉट बी विथ हिम और हर? प्लीज कंटिन्यू। माधुश्री जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आई थिंक सो यू आर अ, ऑन म्यूट। हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। बहरहाल ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है और जब हम सांस लेते हैं तो यह हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सके। हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। जब मैंने पहले पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी और यह तरीका कारागार सिद्ध साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओश, अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। मैं अब समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वह जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं और जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है, उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। तो आप देखिए इस 2 पैराग्राफ में कितने रिडल्स है। लेखिका फर्स्ट बोलती है, हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों तक अधिक जीवित नहीं रह सकता। आप बोल लोगे मुझे ये पता है, इसमें क्या रिडल है? सबको पता है, बट आपको आज रियलाइज़ होगा कि पता होने के बावजूद व्हाट वी ऑल, मैं और आप कर रहे थे आज से पहले। सेकंड, वो क्या बोल रही है कि जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वह जादुई हवा जिसे हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता की सबसे गहरी स्तर पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने उसके पहले यह भी कहा है कि ऑल द गिफ्ट्स ऑफ नेचर, बी इट सन, बी इट ट्री, बी द फार्मर जो हम लोग के लिए ये सब पेड़ उगा रहे हैं, जो भी है, जो हम लोग के लिए पेड़ नहीं काट रहे ताकि हम लोग सांस ले पाए, उन लोग सब, वो उन सब के लिए ग्रेटफुल होती थी। एंड उन्होंने ये एहसास किया है कि जब वो प्रकृति और जीवन के कीमती उपहारों के लिए कृतज्ञ हो रही थी, उनको वो दूसरे स्तर पर ले जा रहा था, टोटली अ डिफरेंट स्टेट, अ पीक स्टेट। एंड और उसके बाद उन्होंने यह भी बताया है कि जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है, उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है।
वो आउटराइट आके आपको सामने बोलिए कि अगर जो भी व्यक्ति इतनी गहराई से, इतनी डेप्थ में कृतज्ञता देगा, ग्रैटिट्यूड फील करेगा, उसको पूर्ण समृद्धि मतलब अबंडेंस मिलना श्योर है। 100% उसको बहुत अबंडेंस मिलेगा अपने लाइफ में, उसके सारे ड्रीम्स पूरे होंगे। आप सोच रहे होंगे नेचर के लिए थैंकफुल बोल के कहाँ से अबंडेंस मिलेगा, कहाँ से ड्रीम पूरे होंगे? आप एक चीज सोचिए, अगर सन नहीं हो, एयर नहीं हो, वाटर नहीं हो, यू विल नॉट बी एबल टू लिव, एंड इफ यू कांट लिव, you can't fulfill your dreams. So these are all connections, these are all interrelated. So आपको डिसीजन लेना है कि आपको अब से क्या करना है। जब भी आप वॉक करने जा रहे हो, गाड़ी में बैठ रहे हो, आप अगर सूरज जी को अर्घ दे रहे हो, वाटर दे रहे हो सुबह, तो आप उनसे उनको थैंक यू बोलिए कि आप मुझे इतनी रोशनी देते हैं। आप जब भी ब्रीथ कर रहे हो, आप एयर को थैंक यू बोलिए। एंड बिलीव मी, द थिंग इज, हम लोग, आप बोलोगे 24/7 सिर्फ ग्रैटिट्यूड, सुबह उठ के काउंट काउंट योर ब्लेसिंग्स, मैजिक रॉक, फिर हम लोग वो मैजिकल मॉर्निंग का प्रैक्टिस करते हैं, एवरी सिंगल टाइम ग्रैटिट्यूड, ऐसे क्या हो क्या रहा है? बट प्लीज रिमेम्बर कि करते 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 जब आपकी ये रग रग में बैठ जाएगा ना, उसके बाद भी देयर विल बी टाइम जब आप भूल जाएंगे ग्रैटिट्यूड देना। इसलिए लेखी का ट्राई करिए कि दिन में जितने बार हो, छोटे छोटे चीज में आप थैंक यू बोले, ताकि आप कभी अगर छूट भी जाए ना, तो यू मेक अप फॉर इट। किसी ना किसी तरीके से आप बस थैंक यू बोलिए, उनका बस यही मोटो है। प्लीज कंटिन्यू। आज जरा ठहरे और उस सुखद हवा के बारे में सोचिए जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5-5 बार सांस लें और शरीर के भीतर हवा के प्रभावित होने की भावना महसूस करें। फिर सांस बाहर निकालने के आनंद को अनुभव करें। आज 5 गहरी सांसें लें और छोड़ें। यह काम 5 अलग-अलग समयों पर करें और जब आप 5 बार सांसें लेकर छोड़ते, तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ कहे। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप ये जादुई अभ्यास खुले में करें, ताकि ताजी हवा की भव्यता का सचमुच महसूस कर सके और उसकी कद्र कर सके। यदि संभव न हो तो इसे घर के भीतर ही करें। सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और फिर आप उन्हें खुला रख सकते हैं। आप उसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हो, लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, या जहां चाहे वहां कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। इस तरह सांस लेके जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि यह जादुई नेक्स्ट पेज। यस, हाँ, आई जादुई थिंक अभ्यास। नहीं, या आपको नेक्स्ट पेज से पढ़ना हाँ, चाहते क्योंकि ये हैं? जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है। यदि अधिक गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि कोई आवाज निकालने से मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मिलती हो तो वैसा कर ले। यदि आप चाहे तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए ये कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। तो प्राचीन ग्रंथों एक मिनट रुकिएगा ना। सो आपको करना क्या है बेसिकली टुडे? आप सोचेंगे ये तो कितना सिंपल है, मैं तो पूरे दिन सांस लेती रहती हूँ, ये लेखिका क्या बोलने की कोशिश कर रही है? बट नो, व्हेन वी ब्रीथ, हम लोग मतलब सोचने का तो बात ही नहीं है, हम लोग माइक्रो सेकंड भी नहीं देते हैं अपने सांस को ऑब्जर्व करने के लिए, नन ऑफ अस, अनटिल एंड अनलेस हम लोग कोई इशू फेस कर रहे, कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं। ये तो हम लोग कभी भी थोड़ी अपने, जब सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हम लोग थोड़ी उस पर ध्यान देते हैं कि कैसे सांस आ रहा है बाहर या जा रहा है। नो, वी डोंट डू इट। तो लेखिका यही बोल रही कि आज एटलीस्ट 5 टाइम्स आपको सांस अंदर लेनी है और छोड़नी है। एंड प्लीज रिमेम्बर, हम लोग जैसे, या आप अनुलोम विलोम नहीं कर रहे अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, नो, आपको स्लोली स्लोली कामली एक लंबी सांस लेनी है,
एंड बोलना है वाओ व्हाट एयर आई एम ब्रीदिंग इन, आई एम सो ग्रेटफुल दैट बिकॉज ऑफ दिस एयर आई एम अलाइव, थैंक यू फॉर दिस फ्रेश एयर। मन ही मन बोलिए या जोर से बोलिए एंड बाहर निकालिए। प्लीज रिमेंबर वन थिंग, you need to do it slowly, you need to keep your focus on the gratitude, ना कि आपको गिनना है कि 5 बार हुआ क्या, 5 बार सांस अंदर बाहर कर ली क्या मैं, नहीं। फोकस ऑन द एयर, फोकस ऑन कृतज्ञता एंड यू विल सी द डिफरेंस। आपको क्या फील होगा पता नहीं, एटलीस्ट मेरे साथ हुआ, यू नो यू विल फील दैट द एयर इज सो मेस्मराइजिंग, इतना मिठास है, मतलब लगेगा कि सच में आपके अराउंड सिर्फ पॉजिटिविटी और कुछ है ही नहीं। तो प्लीज प्लीज 2-3 मिनट निकाल के ढंग से करने की कोशिश करिएगा, यू विल फील अमेजिंग। एंड वो बोलिए कि यू नो आप ये शॉपिंग मॉल जब जा रहे हो या मॉल में खड़े हो लाइन के लिए या गाड़ी में बैठे हो तब कर सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी ये है रिक्वेस्ट कि स्टार्टिंग में आप शांत जगह लीजिए एंड 5 मिनट लेके शांति से मन से बैठ के करिए, बिकॉज टू एक्चुअली बिलीव इन द फैक्ट दैट हाँ एयर जो हम लोग ले रहे हैं बाहर अंदर ले रहे हैं और बाहर जा रहे हैं, तो कृतज्ञता आ रहे हैं अंदर और सारी नेगेटिविटी बाहर जा रहे हैं, वो फील करना आपको तभी होगा जब यू विल बी इन अ सीरीन एनवायरनमेंट, काम एनवायरनमेंट, कोई आपको वहां पे डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है। वहीं अगर गाड़ी में आप चल रहे, फोन आ गया, हॉर्न बज गया, शॉपिंग मॉल में कोई आपको बोल दिया थोड़ा जल्दी करिए, तो यू नो शॉपिंग के एरिया में एकदम भी साइलेंस नहीं होता है। तो बिगिनिंग में फॉर सम डेज प्लीज शांति से कोई जगह में बैठ के एकदम मन से फीलिंग्स के साथ बाहर लीजिए, निकालिए एंड फील इट। एंड यू नो इफ यू वांट, स्टार्टिंग में नहीं बट आफ्टर 2-3 डेज यू कैन पुट एकदम ब्यूटीफुल म्यूजिक पीछे, एकदम एकदम ब्यूटीफुल जो मेडिटेशन करते जो हम लोग लगाते हैं, ताकि आपको फील हो मतलब कुछ एकदम शांति है, आप सांस बाहर ले अंदर ले रहे छोड़ रहे एंड वो स्लाइट म्यूजिक चल रहा है, इट विल जेन्युइनली फील अमेजिंग। प्लीज प्लीज इसको जरूर करिएगा आज। प्लीज कंटिन्यू। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिससे वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और यह सच्चा कामयागर बन जाता है, किमियागर बन जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश के सोने में बदल सकता है। So all of y'all will become the alchemist. Alchemist कौन होते हैं हम लोग सबको पता है, जो कोई भी चीज को सोने में बदल दे। So from today आप लोग धीरे धीरे सोच रहे होंगे कि हम लोग को पहले भी बताया गया है कि यू नो इन ऑर्डर टू फुलफिल योर ड्रीम्स, इन ऑर्डर टू डू एनीथिंग, आपको डेप्थ तक जाना होता है, क्योंकि सोना निकालने के लिए अंदर तक खोदना पड़ेगा, वरना वो सोना आपके हाथ में नहीं आएगा। तो यही डेप्थ है जो लेखिका बताने की कोशिश कर रही है कि हम लोग को अपने आसपास के हर चीज के लिए, नेचर का हर गिफ्ट के लिए थैंकफुल होना है, बी इट वाटर, बी इट एयर, बी इट फायर, बी इट एनीथिंग। तो प्लीज रिमेंबर दैट आप अल्केमिस्ट है, अपने दुनिया को अपने आस पास के चीज को सोने में बदलने के लिए, अपने दुनिया को और ज्यादा मैजिकल बनाने के लिए एंड अपने आप के अपने ड्रीम्स को एक ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए वन ऑफ द जरिया इज टू बी ग्रेटफुल फॉर द उपहार फ्रॉम प्रकृति। प्रकृति के उपहार के लिए आपको धन्य होना है। प्लीज रीड द जादुई अभ्यास। जादुई अभ्यास क्रमांक 23, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज 5 बार, दूसरा नंबर, आज 5 बार ठहरकर उस जीवनदायी हवा के बारे में सोचे जिसमें आप सांस लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस लें और हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें। नंबर तीसरा, जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दे तो जादुई शब्द कहे उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर चौथा नंबर,
आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। ये तो ऐसा विपासना में करते हैं ना, जैसे सांस पे ध्यान देके। मतलब मुझे आइडिया नहीं है बट डेफिनेटली होता होगा। एंड जैसे हम लोग मेडिटेट भी जब करते हैं, वी फोकस ऑन द एयर, वी डू फोकस बट वी डोंट फोकस ऑन द फैक्ट दैट वी हैव टू बी ग्रेटफुल। हम कृतज्ञता की ओर नहीं बढ़ते, हम लोग सिर्फ अपनी सांस को ऊपर नीचे फोकस कर रहे हैं। आपको मेन चीज यहाँ पे कि आज आपको अपनी सांस आसपास के जो एयर है उसके लिए ग्रेटफुल होना है। एंड प्लीज रिमेंबर वन थिंग, वी ब्रीथ ऑक्सीजन एंड एयर का कंपोनेंट्स में ऑक्सीजन इज जस्ट 21%, जस्ट। बाकी सब कुछ नाइट्रोजन और बाकी चीज है। वो 21% में से आप एक हकदार है जिसको मिल रहा है इस पूरे जगत में। यू आर वन ऑफ देम। सो प्लीज रिमेंबर कि आप उस 21% के अगर हकदार है एंड यू आर सो गिफ्टेड, आपको उसके लिए कृतज्ञ होना इज अ नेसेसिटी। प्लीज रिमेंबर दिस। So thank you, Madhushri ji, for reading the chapter in Hindi. And I would now request Yashasvi to please take over. Thank you for giving me opportunity. Thank you. Thank you. Thank you, Sakshi, for explaining us the chapter so beautifully. And thank you, Madhushri auntie, for reading the chapter so nicely. So I would like someone to nominate themselves to read this chapter. I can read it. Could you please take your name? That's Sal. Yes, please continue. Day 23. The magical air that you breathe. It is quite possible to leave your home for a walk in the early morning air and return a different person, beguiled and enchanted. Mary Ellen Chase, educator and writer. Yes, 1 minute. So it is quite possible कि आप अपने घर, when you're leaving your house and when you're going for a walk early morning, you know the early morning में कितनी fresh air होती है. I mean it's amazing. So you know sometimes when you're feeling worried or you know कुछ tension हो रहा है आपको, so you just go for a walk and you see that you know how the air has changed everything in us. Be wild, मतलब you know it's something charming, something attracting. And this is the power of air. I mean, it is magical, it is magnificent, enchanted, it is mesmerizing. I mean, you just go into it and it transforms magically who you are. So, you know, बहुत बार जैसे when my mom feels down or you know she's feeling a little low, so my dad always tells her कि you know मेरे घर के सामने बहुत beautiful park है, horticulture garden. So and वहाँ पे you know there are trees all around, तो मेरे घर पे भी there are trees all around and the nature is beautiful. So I mean you know when I go for a walk there, it's I mean it's amazing. But before this chapter I actually never said thank you for the air which I got. मतलब मैम वाज लाइक यार एयर मिल रही है, सबको तो मिल ही रहा है, 21% एयर इस वर्ल्ड में, क्या बड़ी बात है, इट्स 7 बिलियन पीपल इस वर्ल्ड में, सबको तो मिल रहा है. बट आई मीन इट्स अमेजिंग हाउ गुड शी स्टार्ट्स फीलिंग. पापा हमेशा बोलते बेटा जाओ बाहर, एयर 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 लो, मतलब इतनी अच्छी है. एंड यू नो इट्स जस्ट मैजिकल. And you know, you might have noticed whenever we go to another country, the flora and fauna in every country is different. तो वहाँ पे लाइक आई पर्सनली लव नेचर अ लॉट. मतलब मैं एक्चुअली ढूंढती हूँ ना नेचर वाली जगह जहाँ मैं ट्रैवल करूँ. सो यू नो वहाँ की एयर की मिठास, इट्स ब्यूटिफुल, क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन भी कम होती है. सो आई मीन इट्स अमेजिंग. सो लेट्स रीड. प्लीज कंटिन्यू वत्सल. If someone had told me a few years back to be grateful for the air that I breathe, I would have thought that person was crazy. It wouldn't have made a bit of sense to me. Why on earth would anyone be grateful for the air they breathe? But as my life changed from using gratitude, the things that I took for granted or didn't give a second thought about became an absolute miracle to me. I went from sweating the small stuff in my little world and day to day life to opening my eyes and thinking about the bigger picture and wonder of the universe. As the great scientist Newton said, when I look at the solar system, I see the Earth at the right distance from the sun to receive the proper amounts of heat and light.
This did not happen by chance. Yes, so I mean, few years back, even the author was like, अगर कोई उनको बोलता that be grateful for the air that you breathe, कोई भी सोचता यार पागल है क्या, मतलब ऐसे कैसे ग्रैटिट्यूड कर ले एयर के लिए, तो फ्री में मिल रही है हम लोग को, इसलिए क्या पैसा दे रहे हैं. आई मीन वी कैन बी ग्रेटफुल फॉर द मनी, फॉर द रिलेशनशिप्स, फॉर हेल्थ, बट वाई एयर? एयर वी आर गेटिंग इन फ्री. So I mean normally there is so much, मतलब air is so much in abundance, मतलब हम लोग को every day मिल रहे. I mean बिना कोई even if we are not grateful, God ये नहीं बोले कि नहीं यार आज मैं air नहीं दूंगा, आज मैं बंद कर दूंगा तुम लोग के लिए, क्योंकि तुम लोग ने कभी थैंक यू बोला ही नहीं है. So but why? Because आप you must have noticed that थोड़े साल पहले we would not get packaged bottles like Bisleri, and हम लोग सब या तो हैंड पंप से पानी पीते थे, या बहुत जगह फॉरेन कंट्रीज में भी जैसे यू गेट वाटर इन टैप, तो वहाँ पे टैप से भी पीना होता है, तो मतलब वैसे करके मिलता था. एंड व्हेन आई वाज रीडिंग दिस चैप्टर इन ऑगस्ट, आई थॉट कि नाउ डेज वी एक्चुअली पे we pay to consume water bottles. I mean, why would we even do that right now? So my interpretation is that somewhere we were not grateful for this resource. जैसे वाटर भी कितनी abundance में है ना, अब फ्री में मिल रहा है, तो हम लोग उसके लिए पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं उसके लिए कृतज्ञ नहीं थे. We were not grateful. So that is why today we are buying, everybody is buying. So I mean that is the thing कि एयर जो अब मिल रही है, और अगर हम लोग अब ग्रेटफुल नहीं हो, तो पता नहीं आगे जाके साल में क्या हो जाए, कि हम लोग को हो सकता है एयर भी खरीदना हो, कोई कोई कंट्री से इंपोर्ट करना हो. सो आई मीन it's amazing to think that how the air can also change our lives. Please continue, Vatsal. Those words made me think more and more about the bigger picture. It's not an accident that there's a protective atmosphere surrounding us and that beyond it, there's no air or oxygen. It's not an accident that the trees give off oxygen so that our atmosphere is continually replenished. It's not an accident that a solar system is perfectly placed and that if we were anywhere else in the galaxy, we would most likely be devastated by cosmic radiation. There are thousands of parameters and ratios that support life on Earth. All of them are on a knife edge, and their fine tuning is so critical that a fraction of a difference in any of these parameters and ratios would make life unlivable on planet Earth. It is difficult to believe any of these things could have happened by accident. It would seem that they are perfectly designed, perfectly placed, perfectly balanced for us. Yes, 1 minute. So imagine, जैसे sun है. So imagine if it would be a little near or far from Earth. So I mean, there would be no life on this planet. It would either be frozen or burning. या तो जम जाता या तो वो burn हो रहा होता. And imagine the ozone layer would not be there the right distance and at the right thickness. तो I mean, sun की rays तो पहुंचती नहीं हम लोग के पास. There would be no human life. There would be no, imagine if there would be no water, no trees नहीं होता तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होते. And imagine if there would be only oxygen and not carbon dioxide. So I mean even the slightest change in these things would result in no life. Because अगर एक भी चीज चेंज होता ना इन चीज में, तो या तो कम एयर होता, या तो कम ऑक्सीजन होता, लोग कम होते. So how each thing plays an important role in our life. Trees, oxygen, air, water, ये सब चीज तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है मनी एंड ऑल से, क्योंकि अगर ये ही नहीं रहेगी तो हम कैसे रहेंगे. येट वी टेक दिस फॉर ग्रांटेड. मतलब मैंने जब ये चैप्टर पहली बार पढ़ा था ना, आई वाज लाइक यार एयर के लिए कौन थैंक यू बोलता है. And as you know that when we come in the week 4, our gratitude goes to another height. So why? Because आप ये चीज के लिए जब थैंक यू हो रहे हैं ना, इतने छोटे छोटे चीज में लाइफ के लिए, so you will start being aware of your surroundings. I mean it is so important. Please continue. When the realization hits you that all of these things might not be an accident, and that the balance of every microscopic element surrounding Earth and on Earth is in perfect harmony to support us, you will feel an overwhelming sense of gratitude for life because all of it has been done to sustain you.
The magical air that you breathe is not an accident or a fluke of nature. When you think about the enormous of what had to take place in the universe for us to have air, and you then take a breath, breathing air into your body becomes breathtaking in every sense of the word. Yes. So I remember telling you all this example before also. So आप लोग को याद होगा कि जब एकदम स्टार्टिंग में जब कोविड स्टार्ट हुआ था, so there was this old patient, an old man about 80 years old. He was admitted in the hospital and मतलब he was having breathing problems, तो उनको ऑक्सीजन चढ़ाया गया था in the hospital. So like he was there for 1 week to 10 days and after that he was getting discharged. तो वो जब हॉस्पिटल छोड़ रहे थे तो डॉक्टर ने उनको बिल दिया था कि जैसे उनको 10 डेज का पैसा भरना था हॉस्पिटल में। तो जैसे ही डॉक्टर ने उनको बिल दिया उसके हाथ में, आई मीन ही वाज इन टीयर्स, वो रोने लग गए। तो डॉक्टर लोग ने बोला कि कोई बात नहीं, अगर आप अभी नहीं दे सकते तो थोड़े दिन बाद दे दीजिएगा, बिकॉज इट वाज अ वेरी बिग अमाउंट, बिकॉज ही वाज देयर फॉर 10 डेज। सो आई मीन दैट ओल्ड मैन वाज लाइक, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसा देना है, पैसा तो मेरे पास बहुत है, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं इतना पैसा एयर के लिए दे रहा हूँ जो मेरे पास 80 ईयर्स से अबंडेंस में था, जो मुझे फ्री में मिल रहा था। आज मैं उसके लिए मनी पे कर रहा हूँ। क्यों? बिकॉज आई वॉज नेवर ग्रेटफुल। उन्होंने आज तक 80 ईयर्स में ये नहीं बोला थैंक यू गॉड फॉर द फ्री एयर दैट यू हैव गिवन मी, थैंक यू गॉड कि मतलब बिना कोई पैसा देने के बजाय मुझे ये एयर मिल रही है। मतलब यार एयर इज सो इम्पोर्टेंट, क्या मिठास होती है इस एयर में। आई मीन इमेजिन उनको ये रियलाइजेशन हिट हुआ। So I mean it's amazing when I read this now, I was taken aback, I was surprised कि यार सच्ची में अब दुनिया में ना ये कोविड की वजह से कितने लोग को कितना चीज रियलाइज हो रहा है। मतलब गॉड ने एक्चुअली ना, मुझे कभी कभी लगता है कि एक्चुअली हमारे सामने किया ताकि हमारे को हेल्थ के बारे में पता चले, एयर के बारे में पता चले, हर चीज के बारे में रियलाइजेशन हमारी इतनी अच्छी हो गई। आई मीन इट्स अमेजिंग। सो प्लीज कंटिन्यू। We take one breath we take one breath after another and never give a thought to the fact that there is always air for us to breathe. Yet oxygen is one of the most plentiful elements in our body, and as we breathe, it feeds every cell in our body so that we can continue to live. The most precious gift of our life is air, because without it, none of us would last more than a few minutes. When I first began to use gratitude's magical power, I used it for a lot of personal things that I wanted, and it worked. But it was when I began to be grateful for the real gifts in life that I experienced the ultimate power of gratitude. The more grateful I became for a sunset, a tree, the ocean, the dew on the grass, my life, and the people in it, every material every material thing I've ever dreamed of having poured down upon me. I now understand the reason why it happened that way. When we can feel truly grateful for the precious gifts of life and nature, like the magical air that we breathe, we have reached one of the deepest possible levels of gratitude. And whoever has a depth of gratitude will receive absolute abundance. Yes, 1 minute. So, when we are grateful for the precious gifts of life and nature, like the magical air or the sun, the water, the trees, हम लोग का ग्रैटिट्यूड अलग लेवल पे चला जाता है, डीपेस्ट पॉसिबल लेवल। एंड हुएवर, जैसे हम लोग आपको डे वन से बोले, जितनी डेप्थ में आपकी ग्रैटिट्यूड होगी ना उतना अबंडेंस आप रिसीव करेंगे। तो ये चैप्टर क्यों वीक 4 में आया? क्योंकि वीक 4 में आपकी ग्रैटिट्यूड अनदर लेवल पे चली जाती है। तो इसीलिए द मैजिकल एयर दैट वी ब्रीथ, वी नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट। I'll give you an example. In China, you know, I had read this somewhere that in China the air is so polluted today. मतलब इतना pollution है उसके air में कि कनाडा से एक सिटी है बैंफ, वहां से ऑक्सीजन जार्स में आता है। आप सोच सकते हैं, मतलब ऑक्सीजन कंटेनर में आता है चाइना के पास, क्योंकि 10 liters 10 liters you know, for 10 liters you need to pay $45 US, so they've already started paying money for the air. Why?
बिकॉज चाइना में इतनी इंडस्ट्रीज है, तो वहाँ पे इतने पॉल्यूशन है, एंड आप सोच नहीं सकते. सो आई हैव बीन टू दैट सिटी इन कनाडा. द एयर देयर इज सो प्योर. मतलब आप वहाँ जितना थैंक यू बोले ना उतना कम है. मतलब इतने फीलिंग्स के साथ थैंक यू निकलते ना, मतलब मिठास भी कम है उस सिटी के लिए. तो सोचिए उस सिटी से एयर आता है चाइना में कंटेनर में. क्यों? क्योंकि चाइना के लोग, आई डोंट थिंक दे वर ग्रेटफुल फॉर द एयर दे हैड. बट आज इतनी पॉल्यूशन हो गई है उस चाइना में कि मतलब कमाल की बात है. व्हेन आई रेड दिस, आई मीन इट्स सो शॉकिंग. वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड बाइंग एयर. कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव ऑलरेडी स्टार्टेड बाइंग एयर. आई मीन टू स्टॉप दिस, अगर सोचिए मास में हम लोग सब ग्रैटिट्यूड करने लग जाए, तो एयर की तो बौछार है. जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, इस यूनिवर्स में छप्पड़ फाड़ के चीज दी है भगवान ने. तो क्यों क्यों ना हम एक मिनट निकाल के एक्चुअली थैंक यू बोले उस चीज के लिए. सो these things actually teach us so much when we read this. कि यार ये तो, I mean, before this I would have not got to know before this chapter कि actually ये सब चीज हो रहा है. So please continue. Today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. Take 5 full breaths in and out 5 different times today. And after you have taken each set of 5 breaths, say the magic words, "Thank you for the magical air that I breathe." And be as genuinely grateful as you can for the precious, life giving air that you breathe. It is the best it is best if you can do this magical practice outside so you can really feel and appreciate the magnificence of fresh air. But if that's not possible, then do it inside. You can close your eyes while taking the breath, or you can do it with your eyes open. You can do it while you're walking, waiting in line, shopping, or anywhere at any time you want. The important thing is to deliberately feel the feeling of the air going in and out of your body. Breathe the way you naturally breathe because this magical practice is not about your breathing, but about your gratitude for the air you breathe. If taking a bigger breath helps you to feel more gratitude, then do that. If it helps you to make a sound or mentally say the magic words, "thank you," as you breathe the air out, then do that. If you want, you can also do a variation of this practice in the future by imagining you are breathing in gratitude and filling yourself up with it with every breath you take. Yes, 1 minute. So today you need to take 5 deliberate breaths. मतलब आप जहाँ पे भी है. So yes, my request to all of you is that please खुले में कीजिएगा. तो जैसे आपके घर पे जैसे balcony होगा, टेरेस होगा, तो वहाँ पे आप मतलब खुले में करेंगे तो you will get more feeling क्योंकि you can actually feel the air. But if not possible, you all can do it in your room or anywhere. So you need to take 5 deliberate breaths in and out. आप 5 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, but यहाँ पे today it suggested 5. So I mean, when I did this practice, the day I was supposed to do this, I went to horticulture to do this. You can't imagine, मतलब कितने दिल से थैंक यू निकल रहा था उस एयर के लिए. मतलब मतलब ऐसे होता ना, यू हैड टीयर्स इन योर आईज कि आज के पहले 18 साल में मैंने कैसे कैसे थैंक यू नहीं बोला. मुझे कोई क्यों नहीं बोला कि यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर द एयर. एंड मतलब हॉर्टिकल्चर में जाते ही ना किसी का भी मूड चेंज हो जाता है बिकॉज इट्स सच अ सीरीन प्लेस. इट्स सो काम, इट्स सो पीसफुल. सो इवन यू कैन, सो अभी तो आई डोंट नो इफ यू ऑल आर स्टेपिंग आउट. सो टेरेस या बालकनी में बैठ के आप कर सकते हैं. एंड मतलब दिल से निकालेगा. जस्ट डोंट डू इट बिकॉज यू हैव टू बी ग्रेटफुल क्योंकि एयर है. फीलिंग लेकिन आप सोच भी नहीं सकते हैं. सो जस्ट फील इट, feel the air and just be thankful for it. Please continue. In ancient teachings, it is said that when a person reaches the point of being deeply grateful for the air that they breathe, their gratitude will have reached a new level of power, and they will have become the true alchemist who can effortlessly turn every part of their life into gold. Yes, so today we all are going to be the alchemist in our life. So an alchemist is a person
जो कुछ भी टच करते हैं ना एंड वो चीज गोल्ड में बदल जाती है. सो लाइक यू नो गोल्ड इज हाउ वी categorize gold. So gold is precious, it's so highly valued, it's really demanded, it's high in value. तो आप जो भी चीज टच करेंगे वो गोल्ड में टर्न हो जाएगा. I mean, you know, these chapters have the potential to turn us into an alchemist. कैसे मतलब हमारी जो ग्रैटिट्यूड लेवल है उसको मतलब यू नो द मोर वी प्रैक्टिस दिस उतनी ज़्यादा हमारी ग्रैटिट्यूड लेवल बढ़ती जाएगी. It's amazing. So all of us are going to be an alchemist in our life. Please continue. Magic practice. Magic practice number 23. The magical हाँ, air ये that भी we रख. count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for the blessing as you can. 5 times today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. After you have taken 5 breaths, say the magic words, thank you for the magical air that I breathe. I can't see after this. It's written be as grateful as you can. Yeah, after that I can't like see anything. Be as grateful as after that I can't see Okay, wait, anything. I'll read it. I'll read it. Be as grateful as you can for the precious life giving air that you breathe. You can continue with number 4. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes, so today you need to stop 5 times and think about the glorious air, the mesmerizing air, the magnificent air that we breathe every day non-stop. And हम लोग को 5 deliberate breaths लेना है जो and you need to feel कि वो आपके body में in and out जा रहा है. You know, I mean, आज don't do it, you know, while doing meditation or something. Today just sit and do it, you know, deliberately जैसे book ने बोला है. So just think. And after you have taken the magic 5 breaths, you need to say thank you for the magical air that I breathe. So today's practice is, I mean, amazing. मतलब दिल खुश करने वाली practice है. So thank you, Vatsal, for reading the chapter so nicely for all of us. Thank you. Thank you, Yashasvi. So, firstly, हम लोग आपको आज inform करना चाहते हैं that due to college commitments and academic commitments, Arindas will not be present with us for the next 3 more days. However, वो last के 3 दिन आएगा and so the thing is this practice is very उसको मिस करेंगे हम लोग, बोलना उसको. definitely Yes, Auntie. पक्का. So ये जो practice है, it is definitely very easy. You must be thinking कि you know ऐसा क्या difference feel होगा, but believe me जब आप ये करेंगे खुद से, you will feel the difference, provided कि आप बहुत बहुत feelings दे and मन से आप एकदम कृतज्ञ हो. So it is all about the feelings. ये शशि रोज बोलती है, it is all about the feelings. Feelings are fuel. सो प्लीज मेक श्योर कि आप शांति से एक जगह में बैठे एंड 5 मिनट निकाले पूरे दिन में या 10 मिनट एंड जस्ट बी ग्रेटफुल एंड यू नो this is not related to the 5 elements, but this is something which I always do. मेरे अपनी मासी में आया. So if it comes to anything, आप कोई भी चीज करें, suppose you are taking a bath. So when you are taking a bath, आप उस समय अपने body parts को thank you बोल सकते हैं. When you are going for a walk, आप 5 elements जो है 5 तत्व उनको thank you बोल सकते हैं जो लोग walk पे जाते हैं. तो you know आप ऐसे ऐसे चीज ढूंढिए कि आप जिस समय जो काम कर रहे हैं आप मन को कॉन्स्टेंटली बोलिए इससे रिलेटेड में क्या थैंक यू बोल सकती हूँ अभी. यू क्वेश्चन योर सेल्फ अनटिल आप अपने आप को पूछेंगे नहीं, अपने आप को क्वेश्चन नहीं करेंगे, यू डोंट मेक द कॉन्शियस एफर्ट, तब तक यू नो आप कोई चेंज नहीं देख पाएंगे. अगर आप रोज एक असाइनमेंट के फॉर्म में लेंगे, खाली एक दिन कर लिए एंड आप आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आई डोंट नो मतलब द रिजल्ट जो होना चाहिए वो आई डोंट थिंक सो हम लोग सबको मिल पाएगा, मेरे को एंड आपको. तो इट्स सिंसियर रिक्वेस्ट, आप कॉन्शियस एफर्ट बनाइए, आप खोजने की ट्राई करिए जब भी आप कोई कार्य कर रहे हो कि इसमें मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि मैं इससे क्या क्या एटीट्यूड दे सकती हूँ.
And you know when you Yes, yes, Sakshi. yes, go ahead. Yeah, so you know when you don't feel like doing it, आपको लग रहा है कभी कभी आपकी फीलिंग्स नहीं निकल रही है, तो आप ये सोचेगा कि अगर ये नहीं होता तो क्या मैं रह पाती, क्या मैं जीवित हो पाती। मतलब हम लोग इतने जो ग्रांटेड ले लेते हैं ना हर चीज को। आई मीन एक्चुअली थैंक गॉड एवरी डे कि मुझे बुक के बारे में पता चला। मतलब कमाल की बुक है यार, क्या क्या बताता है ये बुक हमारे को। You can't even imagine. Basically, book हमारे को बता रहे that when you come at the end of the session, when you come at the end of the magic book, कि बेटा हर चीज के लिए थैंक यू बोलना है। Pencil, pen, book, anything you see during the day, just say thank you. ये नहीं होता तो क्या मैं कर पाती, ये नहीं होता तो क्या मैं रह पाती। So it's amazing. I mean, So if you all have any, if you all have any sharings or questions, you all can ask. yes, and before that we'll do our dance, and then we'll take in the sharing and questions. So today's song is a lovely, lovely song. तो आप जब भी मस्ती कर रहे हो जीवन में, कहीं खुले वादियों में हो, आप ड्राइव पे हो, कहीं भी हो, सड़क पे मस्ती कर रहे हो, just be thankful for all the things around you and especially for the air. Yes, so let's dance, let's celebrate. So I mean, amazing song. मतलब just like Deepika Padukone and Ranbir Kapoor, we have to be in our lives. मतलब Sakshi, are you saying? Yeah. No, you may continue. No, I'm done. एंड वन मोर थिंग, आई डोंट नो, मेरे को बस गाना सुनते सुनते चीज याद है। कितने बार हम लोग बात करते रहते हैं ना, तो कोई बोलता है यार आज तो एकदम हवा में इतनी गर्मी है, एकदम लू चल रही है, एकदम अच्छी हवा नहीं आ रही है, प्लीज बंद कर दो, एसी चला दो। वेल गुड इनफ, एकदम ऑब्वियसली बहुत बार होता है, गर्मी होती है ऐसी, पर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो आपका समय है कि आप एसी भले ही चलाए, आप अपने मुंह से ये नहीं निकाले कि हवा में गंदगी है या बहुत गर्मी है, ये है वो है। आप उस समय बल्कि ये बोले कि एटलीस्ट भी थैंकफुल हम लोग के पास एयर है ब्रीथ करने के लिए, हम लोग के वातावरण में भी आर गिफ्टेड दिस फ्री एयर। आप ऐसे जब ट्राई करेंगे ना बोलना, एंड ट्राई टू जब भी कोई इंसान कोई चीज को ट्राई टू ऐसे पूरी डिमीन करने की कोशिश करे, या ऐसे बिहेव करे कि क्या है, कुछ नहीं है, बड़ी बात नहीं है, यू डोंट गेट अफेक्टेड। आपको लड़ना नहीं है उस इंसान से, ना आपको उसको चेंज करना है, ना उसको समझाना है, आपको सिर्फ अपने आप को बोलना है। एंड एट टाइम जब अपने आप को आप बोलते हैं या किसी को ऐसी मस्ती में बोलते हैं, ठीक है तुम्हें लगता है बट आई तो फील कितने हम लोग लकी है वी हैव द एयर, वो इंसान के मन में आता है दूसरी बार कि वाओ ये सोच तो रहा है, कम से कम ये मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं। बिलीव में ये लोग के साथ होता है। सो लोग कुछ भी बोले, लोग कुछ भी करें, यू विल नॉट से नेगेटिव थिंग्स, आप कुछ गलत मत बोलिए। एसी चलाइए बट वो खुशी मन से चलाइए, एसी के लिए भी थैंकफुल होइए, एयर के लिए भी थैंकफुल होइए, दैट्स इट, इट्स सिंपल। सो अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन है, शेयरिंग है, सो यू कैन डेफिनेटली डू इट नाउ। तो इट्स 8:13 राइट नाउ, विल बी वेटिंग टिल 8:15, तब तक आप अपना क्वेश्चन शेयरिंग सब कुछ कर सकते हैं। बुक रीडिंग का था दिमाग में कि लाइव डिवाइन करके बुक है, काफी दिनों से। इट्स अ वेरी बिग बुक, बट मुझे कब से मन था कि मेरे को लगा मैं कभी नहीं पढ़ सकूंगी, बट आई वाज विजुअलाइजिंग, आई एम रीडिंग। और अभी 3-4 दिन से मॉर्निंग में 4 बजे उठ के मैं उसका सुनती हूँ। पूरा 1 घंटा उसका पूरा हो जाता है मेरा, मतलब जो लेक्चर है वो सुनती रहती हूँ उसको। तो इट्स लाइक अ ड्रीम विच इज कमिंग ट्रू। डेफिनेटली, एंड वाओ इट्स अमेजिंग। तो आज इट्स जेन्युइनली इट्स रियली अमेजिंग। तो आप सोचिए कि कोई लोग को लगता होगा हाउ कैन रीडिंग अ बुक बी समवन्स ड्रीम, बट मतलब अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू ऑल, आई सपोज कि कोई ड्रीम डिफाइन नहीं किया जा सकता, ड्रीम कुछ भी हो सकता है। सो इट्स सो अमेजिंग कि आपने एक बुक पढ़ने के लिए भी विजुअलाइज किया मधुश्री जी, इट्स रियली अमेजिंग।
एंड आई होप आप लोग सब भी अपने छोटे से छोटे ड्रीम के लिए विजुअलाइज करते हो। तो आप देखिए उनके विजुअलाइजेशन के कारण कैसे वो जल्दी से करना स्टार्ट कर दी बुक पढ़ना सुबह उठ के 4 बजे। तो थैंक तो यू मेरे क्या, फॉर। मुझे क्या था, मुझे एक फियर था अंदर कि आई विल नॉट बी एबल टू रीड दैट बुक बिकॉज इट्स थोड़ा, मुझे लगा हाई है मेरे लिए, यस या आई वोंट बी एबल टू डू इट। तो वो एक फियर था ना, तो लाइक विजुलाइज करती गई तो लाइक इट्स इट हैपेंड ऑटोमेटिकली, लाइक इट्स मैजिक ओनली। Thank you, Auntie, for your wonderful थैंक sharing. यू फॉर योर So, वंडरफुल। for this universe, no dream is, I mean, a dream is like the size of a dot. तो मतलब इस यूनिवर्स में कोई छोटी या बड़ी ड्रीम नहीं होती है किसी के लिए. So, I mean, anything in your life which you want to achieve, you can visualize, you can put it on your vision board. So, I mean, it's amazing that 2, 3 participants have already started seeing magic in their lives. So, I mean, it's amazing. Thank you so much, Auntie. Thank you. Manji, do you have any question you raised? Um, I wanted to say something. So, last week हम लोग अपने नानी घर गए थे. So उसके बाद में after 2 days, almost 50% of my nanny house became positive. So हम लोग जब आए and then when we got the news of everyone, all of us were like, oh my God, हम लोग तो अभी जाके आए हैं. They already had symptoms when we were there. What if it happens to us? हम लोग ये वाला टाइम पे हम मम्मा एंड साक्षी all of us we made sure no one in the house uttered one word against, and we kept on saying the gift of health is keeping us alive. We kept on giving gratitude. All we did is precautions rakna important hai, so we increased our steam and everything. It's not just about giving gratitude, but then बात ये है ना कि we also went in that same place. उसके बाद में we didn't get affected. I mean, it's all about the way you approach it. हम लोग उसको attract ही नहीं किए, उसके बारे में सोचे ही नहीं, उसको पत्ता ही नहीं दिए. तो वो बोला क्या यार, they are not even giving me attention. So it never came to us. I mean, it was really magical. I mean, मेरे को इतना अच्छा लगा, इससे मेरे को really समझ में आता है, whatever you wish, that is only going to come in your life. Yes, very true. So I mean, I have a similar sharing. So like few days ago, my so my father also had some symptoms. So we quarantined him. And मतलब जिस दिन ना पापा को हम लोग क्वारंटाइन करे थे, I was just laughing. I was like, पापा कोई बात नहीं यार, मतलब आपको मी टाइम मिल जाएगा. And you know everybody was just like नहीं नहीं अब तुम्हारे को भी isolate करना है, ये करना है. You know how people start getting hyper in your house. And I was just like, देखो I am fit, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है. So I mean, don't just trigger that in my mind that something is wrong with me just because my father, and I am with him like 24/7 in the house. So मैंने एक बार भी आप सोच नहीं सकते. I told my mom, my brother is very positive, so I told my mom, my दादा and दादी कि अगर आपका हेल्थ ठीक है तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं, क्योंकि किसी ना किसी को तो स्टेप लेना ही पड़ता है ना घर में पॉजिटिव होने का. And you can't imagine, I was just sending songs to my father to dance WhatsApp पे, and I was like पापा बस डांस कर लीजिएगा इस गाने पे. So I mean, it's amazing. जो चीज को आप इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, जो चीज को आप पत्ता नहीं दोगे, just like Sakshi and Mansi did. So I mean, that is not going to come in your life, because focus on what you want, not on what you don't want. So thank you, Mansi Di, for wonderful sharing, and Sakshi and Mansi Di did a great job. Thank you. एंड बिलीव मी क्योंकि घर में एटलीस्ट 3 पीपल मानसी दीदी मैं और मम्मा इस चीज में बिलीव करते हैं. सो ऑटोमेटिकली सम हाउ माई फादर एंड माई यंगर ब्रदर उन लोग भी दे विल नॉट टेंड टू थिंक एनीथिंग. एंड आप बिलीव नहीं करेंगे जब फर्स्ट टाइम पता चला मन में एक सेकंड के लिए आई वाज लाइक अरे यार मैं तो थोड़े दिन पहले गई थी एंड कुछ कुछ था नहीं उस समय अचानक से क्या. बट दैट वेरी सेकंड आई वाज लाइक साक्षी तुम 2.5 महीना से कुछ कर रही हो और तुम इस वर्ल्ड में स्टेप की हो. सो यू कैन नॉट अपना मेहनत को तुम अपने बिलीफ सिस्टम को और नीचे नहीं लेके जा सकती और नहीं. एंड बिलीव मी उस दिन मतलब उस जस्ट सेकंड के बाद से आई हैव नेवर थॉट अबाउट एनीथिंग. नानी बाड़ी में क्या है मतलब मैं जब नानी बाड़ी का भी बात आता है तो मुझसे पूछता है एवरीवन सुपर फिट एवरीवन सुपर फाइन सब बहुत ठीक है वहाँ पे. एंड this is how you actually just push away things from you which you don't want, and it has happened in front of my eyes. And I'm so grateful for this book and the author कि मैं मतलब आपको मैं समझा भी नहीं सकती हूँ what the feeling is within.
So Imagine if we too and Aryan have changed like at the age of 18. हम लोग को इतना understanding आ गया तो वो सबको आ सकता है. हम तो इतने छोटे हैं. And we three are so grateful that we started at such a young age. This is going to help us so much in the coming years. So I mean, it's amazing. so if any other person has any sharing or questions, you can do. Always remember the good feeling zone and bad feeling zone. So whenever so like Sakshi and Mansi Di said कि जो tension वाला part था उनके phase में, तो that is bad feeling zone, because there is one word in the bad feeling zone as tension, fear, worry. So अगर वो आपके phone के wallpaper या आपके सामने होगा ना, तो तुरंत आप बोलोगे नहीं यार मैं अब bad feeling zone में आ गई. So that is what Sakshi and me do. We have it on a phone wallpaper. So this really helps you to stay above the line. This is really important. So I think so no one has any other questions or sharing. Thank you so much for coming. See you all tomorrow at 7:05 a.m. Hope you all have a magical day. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you.